Welcome dear friends once again and today's हिंदुस्तान टाइम्स की जो मुख्य खबरें हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम दृष्टिपात करेंगे और आपके सामने जो बड़ी महत्वपूर्ण खबर दिखाई दे रही है वो है आज बहुत सारे जो पंजाब के जो किसान हैं जिनको कुछ लोग कहते हैं कनाडा बेस्ड फार्मर्स कह लो या जो भी कह सकते हैं आप, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर एक जो हुजूम चला हुआ है पंजाब से और उनका उद्देश्य है कि दिल्ली का रास्ता रोकें और उनकी जो डिमांड है एमएसपी की या कुछ और अन्य जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए एक दबाव की टैक्टिक्स है उसको। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ये आर्टिकल आया हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स का। Number 3, understanding the issues ailing Indian agriculture. With some farmers unions in Punjab restarting their protest, demanding a guarantee on minimum support price. ये सोवियत संघ के रिजीम में इस तरह का जो प्रोसेस चला था और किसानों को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है उनको नुकसान नहीं हो, इसलिए स्थितियां बदल गई हैं और पंजाब स्पेशली पंजाब के जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो काफ़ी रिच हो गए हैं और वो अधिकतर जो है कनाडा में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, मतलब उनके फैमिली के लोग मतलब काफ़ी रिच हैं। कहने का मतलब बस इतना ही, काफ़ी रिच है। अगर पंजाब के किसानों की बात करें तो पंजाब के किसान देश के अन्य भागों के किसानों से उनकी बहुत ही बेहतर स्थिति है और जो सब्सिडी है उसका ज़्यादा फ़ायदा बड़े किसान ले जाते हैं। तो सरकार का एक अप्रोच ये है कि सब्सिडी को रैशनलाइज किया जाए। ये बहुत पहले से प्रयास किया जा रहा है रैशनलाइज करने का, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी इस के ऊपर हाथ लगाने की। तो सरकार ये चाहती है कि जो बड़े किसान हैं जो मुझे समझ है, ऐसा मैं जैसा मैं समझता हूँ कि बड़े किसानों की सब्सिडी को न दिया जाए या कम किया जाए जो भी हो, और कि ये सब्सिडी का फ़ायदा छोटे किसान मार्जिनलाइज जो फार्मर्स हैं उनको मिले और दूसरे अन्य फसलों को भी इसका लाभ मिले, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा न बढ़ जाए। हाँ, जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर मिलना चाहिए, इस तरह का अप्रोच है। तो विद सम फार्मर्स यूनियंस इन पंजाब रीस्टार्टिंग द प्रोटेस्ट डिमांडिंग गारंटी on minimum support price, agriculture policy is back in public debate. While there can be no rationale for a law providing a blanket guarantee for MSP support, or opposition to this demand cannot be the be all and end all agriculture policy debate in India. In fact, one can argue that the tragedy of Indian agriculture is that it has been caught up in sensational debates such as these, and substantive issues always fail to catch the public imagination. If Indian agriculture has to have a future, it is absolutely essential that does it does. It needs to have a future-oriented policy outlook. In economic terms, this means that it should have adequate investment. Is this requirement being adequately met? Here are three charts that try and answer this question. First, share of agriculture. Share of agricultural spending has remained largely same, but it is true for capital spending. The Center for Monitoring Indian Economy (CMIE) database gives details of revenue and capital spending under economic services category on agriculture by both the central and the states. A long-term analysis of the data shows that the overall share of the public spending in agriculture has largely remained unchanged if one were to ignore the spike seen in the pandemic year.
Does this mean that the government spending in agriculture has been unchanged over the past few decades in India? The true picture emerges when one disaggregates this spending by revenue and capital account. The latter, by definition, it meant that for enhancing long-term productivity and is therefore more useful for future growth. The data clearly shows that agriculture overall share in revenue spending has seen a rise while that of capital spending has fallen even further from its already low level in the past. This is not good news as far as agriculture's future growth prospects are concerned. The falling share of capital spending in agriculture even more worrying because it is widely accepted that public and private investment in agriculture are कॉम्प्लीमेंट्स रेदर देन सब्स्टिट्यूट्स। अब यहाँ पर एक जो ग्राफ है, ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इस तरह के ग्राफ पूछे जाते हैं। तो एग्रीकल्चर शेयर इन रेवेन्यू एंड कैपिटल स्पेंडिंग ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज इन परसेंटेज दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, अलग कलर से दिया हुआ है, और रेड कलर से दिया हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो ग्राफ है देखिए आप 4.7 से 2.77, ये जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है अगर ज़्यादा होता तो एसेट्स का क्रिएशन होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे एसेट्स को बढ़ाता है, तो ये एसेट्स का क्रिएशन होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है बाय एंड लार्ज हमारे फिजिकल डेफिसिट्स को बढ़ाने में सहायक होता है, इकोनॉमी की हालत को ख़राब करने में सहायक होता है। तो ये 25.37% से 36.52% का ये राइज दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छा साइन नहीं है एक्चुअली। आप टोटल एग्रीकल्चर पे जो स्पेंडिंग करते हैं, अगर इस कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करते तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता, ठीक है। शॉर्ट टर्म में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके किसानों को खुश करते हैं, सत्ता वोट मिल जाता है, इस तरह से करते हैं सब पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे एसेट्स का क्रिएशन होता है। अब नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू रिमेन एन अंडर इन्वेस्टेड सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट हुआ। द बेस्ट वे टू लुक एट दिस इज टू ट्रैक द रिलेटिव शेयर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, इट्स शेयर इन कैपिटल फॉर्मेशन डिवाइड बाय द शेयर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA over time. Using relative share is important because simply share of capital formation in agriculture could show a falling trend just on account of its falling share in GVA, gross value added. CMIE data using both the 2004-5 and 2011-12 GDP series shows that agriculture's relative share in capital formation has always been less than 1. This means that its share in the capital formation has been less than its share in GVA in India. The analysis used here has only included agriculture crop sector in the 2004-5 and 2011-12 series rather than agriculture and allied activities, which also include sectors such as forest and fishing. While this number shows a sharp increase in 2020-21 and 2021-22, the last 2 years for which this data is available, this could be a result of non-agriculture economy being disrupted by the pandemic rather than a renewed dynamism in the agriculture sector. To be sure, the picture will only become clear when data for the post 2021-22 period is available. तो डेटा अवेलेबल नहीं है इसका। अब ये हम इसको देखते हैं। तो रिलेटिव शेयर ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, रिलेटिव शेयर ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारा
4-5 सीरीज दिया हुआ है और 2011-12। तो यहाँ पर देखिए 4-5 ये, और यहाँ पर 11-12, ठीक है। तो ये 2011-12 में पहले साल वो डाउनफॉल होता है, इसके बाद फिर वो राइजिंग ट्रेंड होता है और इस समय बहुत अच्छे पोजीशन पे है। और जबकि 2004-2005 जो है एक सीरीज़ है, ये जो इसकी जो सीरीज़ है, अब इसमें देखिए काफ़ी फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशंस जो है इट इज़ नॉट गुड एक्चुअली। रिलेटिव शेयर ऑफ द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का जो एग्रीकल्चर से संबंध है वो बहुत स्टैटिक नहीं रहा, जबकि इधर 2011-12 से लगातार बढ़ता ही रहा। अब आते हैं हम लास्ट सेगमेंट में। इवन फार्मर्स आर रिड्यूसिंग देयर टैक्स इन एग्रीकल्चर नाउ। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, डिफरेंट सोर्सेज, तो वेजेस से आता है 32.2, 40.3% एंड क्रॉप प्रोडक्शन से 47.9 और 37.7, और इधर फार्मिंग ऑफ एनिमल्स है 11.9, 15.7। अलग अलग ईयर का डेटा है, 2012-13 का ये है और 2018-19 का ये है। तो 15.7% हो गया फार्मिंग ऑफ एनिमल्स, और नॉन फार्मिंग बिजनेस 8 और 6.4%। दिस इज द मोस्ट टेलिंग स्टैटिस्टिक्स एज फar एज द predicament of the agriculture sector is concerned. A comparison of data from 2012-13 and 2018-19 situation assessment surveys SAS surveys conducted by the National Sample Survey Office shows that the importance of income from the cultivation has fallen significantly for India's agricultural household during the period, and it was not even the largest source of income for agriculture household. An agriculture household is defined as one which produces field or short or horticulture crops, livestock or other specified agricultural products worth more than 4,000 and had member of self-employed in agriculture in the 365 days precedings the survey. In 2018-19, there were 93.1 million agriculture households and 79.3 million non-agriculture households in India. तो इस तरीके से हम इसको समझने का प्रयास कर रहे थे कि इंडियन एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है, ठीक है। तो और ये बात है कि 2005 के बाद सरकारों ने जो, या पहले की आज़ादी के बाद से ही सरकारों ने वो प्रमुखता से इस इशू को नहीं उठाया, और बाद की सरकारों को इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा लंबा वीडियो लेकिन जानकारी से भरा वीडियो था। इसमें हमने ग्राफ का अध्ययन भी करना सीखा कि किस तरीके से हम ग्राफ का अध्ययन करते हैं, और यही क्वेश्चन अगर सपोज यहाँ से उठा के बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए, उसको छोटा करके नहीं करेंगे तो कैसे संभव है कि अब इसकी अच्छी समझ पैदा कर पाए। थैंक यू।